Okay, good evening, student. Can you able to hear me? Okay. See, in the last lecture, we have done with the integrated rate law. And what is the equation for integrated rate law? K equals to 2.303 upon T log to the base 10 A0 upon 80. Same equation can also be written as what? 80 equal to A0 into e raised to minus KT. And same equation can be also written as what? K equals to 2.303 upon T log to the base 10 A upon A minus X. So equation 1, 2 and 3 are called as the different forms of integrated rate law. Different forms of integrated rate law. Now we are starting with the next heading. That is we already know, but still we are just doing unit of rate constant for first order reaction. Unit of rate constant for first order reaction. So now normally we write the formula as what? K. And K for first order has a unit per time. Per time means what? It can be per second, it can be per minute, or it can be per hour. So K will be given as what? Per time. Per time means what? Time raised to minus 1, and time raised to minus 1 can be written as what? Second raised to minus 1 per minute and per hour. So this is the unit of rate constant for first order reaction. Now we'll go for the next heading. Half-life of the first order reaction. Half-life of first order reaction. Now what is half-life here? The half-life of a reaction is time required for the reactant concentration to fall to 1/2 of its initial value. See here, what is half-life? What is half-life? See here, the half-life of a reaction is time required for the reactant concentration to fall to 1/2 of its initial value. Means what? Suppose, for example, original concentration is 0.2 molar. Initial concentration is 0.2 molar.
You want to make it half of it. Half of it will be how much? 0.1 molar. This suppose, for example, this is final concentration. So initially 0.2 molar and half of it will be 0.1 molar. So time required to make the concentration half are called as half-life of reaction. It is a time required to complete half of the reaction. See, हमारा starting में concentration कितना था? 0.2 था. 0.2 का हाफ मतलब 0.1 करने के लिए कितना टाइम लगेगा? तो 0.2 का 0.1 मोलर होने के लिए जितना टाइम लगेगा, दैट टाइम इज कॉल्ड एज व्हाट? हाफ लाइफ पीरियड. अगर हमारा स्टार्टिंग का कॉन्सेंट्रेशन फॉर एग्जांपल 1 मोलर है, 1 मोलर का हाफ कितना होगा? 0.5 मोलर. तो 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन को 0.5 मतलब हाफ हुआ. तो ये हाफ होने के लिए जितना टाइम लगेगा, दैट टाइम इज कॉल्ड एज व्हाट? हाफ लाइफ पीरियड. So what is half-life period? It is the time required. It is the time required for the reactant concentration. For the reactant concentration to fall one half of its initial value. मतलब हमारे पास जो भी हमारा initial concentration है, उसका exactly half होने के लिए जो time लगेगा, the time is called as the half-life period. मतलब 0.2 मोलर का 0.1 मोलर होने के लिए जो टाइम पीरियड लगेगा, टाइम पीरियड इज कॉल्ड एज द हाफ लाइफ पीरियड. इवन ये हमारा 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन है. 1 मोलर का हाफ कितना होगा? 0.5 मोलर. तो 1 मोलर का 0.5 मोलर होने के लिए जितना टाइम लगेगा, दैट टाइम इज कॉल्ड एज द हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन. सो व्हाट इज हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन? रिएक्शन को हाफ होने के लिए जितना टाइम लगेगा, हमारे रिएक्शन को या हमारे रिएक्शन के जो रिएक्टेंट है उसका कॉन्सेंट्रेशन हाफ होने के लिए जितना टाइम लगेगा, टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस हाफ ऑफ द ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड एज हाफ लाइफ पीरियड. सो व्हाट इज हाफ लाइफ? द हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन इज टाइम रिक्वायर्ड for the reactant concentration to fall to one half of its initial value. मतलब initial concentration के exact half होने के लिए जो time duration लगेगा उसे हमें क्या बोलना है? half life. ओके, तो अभी हमें डेरिवेशन इसका फॉर्मूला डिराइव करना है. फॉर्मूला half life period is shown by the half life period of the first order reaction shown by which symbol? T half. Half life of the first order reaction is shown by which symbol? T half. T half उसका symbol है, correct? तो अभी हमारा देखो, we are having the integrated rate law for first order reaction is the integrated rate law for the first order reaction is, what is the integrated rate law? K equals to 2.303 upon time log to the base 10 A0 upon 8. ये हमारा इंटीग्रेटेड रेट लॉ है. फॉर विच ऑर्डर रिएक्शन? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. अब यहाँ पे A0, व्हाट इज A0? इनिशियल concentration of reactant. Initial concentration of the reactant. AT. AT is called as remaining
concentration of reactant remaining, और remaining concentration हमारा कितना रहेगा, इनिशियल के हाफ. देखो हमारा A0 हमारा इनिशियल था और हमारा रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन कितना रहेगा, A0/2, बिकॉज टाइम कितना लिया है, टाइम t इक्वल टू टेकन एज व्हाट, टी अप. तो अभी हमें क्या करना है, रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन जो हमारा 80 है, रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन हमारा जो 80 है वो हमारे A0 मतलब इनिशियल के हाफ रहेगा, मतलब A0/2. तो हमें 80 यहाँ पे जो 80 टर्म्स है, 80 की जगह क्या लिखना है, A0/2 लिखना है, और t की जगह क्या लिखना है, t हाफ लिखना है. t की जगह क्या लिखना है, t हाफ लिखना है, बिकॉज A0 का मतलब हमारा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, 80 का मतलब क्या था, रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, हमारे रिएक्टेंट का रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन. तो 80 इक्वल्स टू रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन कितना रहेगा, हमारे इनिशियल के हाफ. तो इनिशियल A0 था, तो A0 डिवाइडेड बाय 2, कभी जब टाइम कितना रहेगा, टी हाफ रहेगा. बस टाइम टी हाफ में हमारा जो भी कॉन्सेंट्रेशन बचेगा वो हमारे इनिशियल के हाफ रहेगा. टाइम टी हाफ के टाइम हमारा कॉन्सेंट्रेशन जो भी बचेगा वो इनिशियल के कितना रहेगा, हाफ रहेगा. करेक्ट. तो अभी हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, ये दो चीजें हमें सब्स्टिट्यूट करना है. A80 की जगह क्या लिखना है, A0/2 लिखना है यहाँ पे, और टाइम के जगह क्या लिखना है, हमें टाइम के जगह टी हाफ लिखना है. तो सेम इक्वेशन को आई विल जस्ट राइट डाउन अगेन. K इक्वल्स टू 2.303, टाइम की जगह टी हाफ, टाइम जगह टी हाफ, log to the base 10 A0, और 80 की जगह हमें क्या लिखना है, A0/2. 80 की जगह हमें क्या लिखना है, A0/2. अभी हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, टी हाफ में इधर लिख, और आई जस्ट राइट K इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी हाफ, log to the base 10 A0 into A0/2 क्या लिखोगे, 2 अपॉन A0. ओके. तो यहाँ पे A0/2 था, तो न्यूमरेटर में जाएगा तो 2 अपॉन A0 रखोगे. अभी A0 कैंसिल है, टी हाफ में यहाँ पे लिख देता हूँ, तो टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के, मैंने इंटरचेंज कर दिया, टी हाफ यहाँ पे लिखा, के यहाँ पे लिखा, लॉग ऑफ 2 टू द बेस 10. A0 कैंसिल हो जाएगा, लॉग ऑफ 2, लॉग ऑफ 2 कितना आएगा, 0.3010 अपॉन के, 2.303 इंटू 0.3010 अपॉन के, और ये मल्टीप्लाई करोगे दोनों नंबर तो कितना आएगा, 0.693 अपॉन के. दिस इज द हाफ लाइफ, टी हाफ. टी हाफ मतलब हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन, मतलब हमारा रिएक्शन हाफ कभी कंप्लीट होगा, हम बोल सकते हमारा रिएक्शन हाफ कंप्लीट कभी होगा, हाफ कंप्लीट कभी होगा बोल सकते. ओके. अभी यहाँ पे और ऑन रिलेशन क्या देखा, यहाँ पे हाफ लाइफ किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, के ऊपर डिपेंड कर रहा है. यहाँ पे कोई कॉन्सेंट्रेशन टर्म है क्या, नहीं. आई जस्ट राइट डाउन हियर, the half life of the first order reaction is independent
of independent does not depend. ये हमारा हाफ लाइफ क्या हो रहा है, हाफ लाइफ डज नॉट, इट डिपेंड्स अपॉन इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन. देखो, half life of first order reaction is independent of initial reactant concentration. मतलब हमारा हाफ लाइफ जो है, तो देखो यहाँ पे टी ऑफ इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला आ रहा है, 0.693 अपॉन के. मतलब हाफ लाइफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के. क्या यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, यहाँ पे A0 80 कुछ टर्म है, नहीं है. मतलब हमारा जो हाफ लाइफ रहेगा, हाफ लाइफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर का रिलेशन है. हाफ लाइफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल इन रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन. मतलब हमारा हाफ लाइफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा. इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा. मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना भी होने दो, हाफ लाइफ विल रिमेन द सेम. मतलब सपोज फॉर एग्जांपल, ये हमारा रिएक्शन है ए गिव्स यू बी, ये प्रोडक्ट है. हाफ लाइफ फॉर दिस रिएक्शन इज 1 आवर. इस रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ 1 आवर है. मतलब अगर हमारा ए का कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलार लगेगा रहेगा, तो 1 मोलार का 0.5 मोलार होने के लिए भी कितना टाइम लगेगा, 1 आवर लगेगा. अगर हमारा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 2 मोलार रहेगा, तो 2 का हाफ 1 मोलार होने के लिए कितना टाइम लगेगा, 1 आवर लगेगा. अगर हमारा कॉन्सेंट्रेशन 0.2 मोलार है, तो 0.1 मोलार होने के लिए कितना लगेगा, 1 आवर. मतलब हमारा स्टार्टिंग का कॉन्सेंट्रेशन हायर होने दो या लोअर होने दो, टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द हाफ रिमेन्स द सेम. मतलब ऐसा नहीं है कि हायर कॉन्सेंट्रेशन है तो हाफ होने के लिए ज्यादा टाइम लग रहा है, और लोअर कॉन्सेंट्रेशन है तो हाफ होने के लिए कम टाइम लग रहा है. नहीं, वेदर यू कैन हैव द, ये इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए whether we can have the lower concentration or whether we can have the higher concentration, but the half life period remains the same. इसका मतलब half life of the first order reaction does not depend नहीं करता है, किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, इनिशियल रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन. मतलब तुम्हारा रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन लोअर होने दो या हायर होने दो, बट हाफ लाइफ विल रिमेन्स द सेम. करेक्ट. ये हमारा हाफ लाइफ का फॉर्मूला. ओके, ये हमारा हाफ लाइफ का फॉर्मूला होगा. अभी हम अलग अलग ग्राफ्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं, अलग अलग ग्राफ्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं. आपको यहाँ तक समझ में आया, कुछ डाउट है कि यहाँ तक हाफ लाइफ के डेरिवेशन तक कुछ डाउट है? Next heading I am having here, graphical representation of the graphical representation of the first order reaction. Graphical representation of the first order reaction. Now, what is the graphical representation? What is the graphical representation? The first क्या representation देखो, the first, consider the first order reaction. Consider the first order reaction. A gives you product.
तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, रेट इज इक्वल टू के इंटू ए रेस टू वन। वाई ए रेस टू वन? बिकॉज यहाँ पे हमने मेंशन किया है कि हमारा रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है। कंसिडर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, A gives you the product, rate is equal to K into A raised to minus 1। रेट हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस डी ए, रिएक्टेंट के लिए माइनस साइन, माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू वॉट, के इंटू ए रेस टू वन। सो और ये इक्वेशन मतलब अगर रेट लिखो या माइनस डी ए बाई, दोनों का मीनिंग सेम है। इसे भी हमें क्या बोलना है, रेट, और इसे भी क्या बोलना है हमें, रेट। सो रेट इज इक्वल टू के इंटू ए रेस टू वन। कंपेयर करोगे तो किसके साथ आएगा, y इज इक्वल टू एम एक्स। What is y is equal to mx? A x axis, a y axis, y is equal to mx means it is the equation of straight line passing through it is the equation of straight line passing through origin। Correct, it is the equation of the straight line passing through origin। y is equal to mx, मैथमेटिक्स में आपको मालूम रहेगा कि y is equal to mx का मतलब क्या होता है, इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। करेक्ट। तो अगर हम यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करेंगे, एक्स एक्सिस पे क्या लेना है, कॉन्सेंट्रेशन लेना है, ये मतलब कॉन्सेंट्रेशन। वाई एक्सिस पे क्या लेना है, रेट लेना है। एंड y इज इक्वल टू mx का मतलब इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये हमारा स्ट्रेट लाइन आ गया। एंड m मतलब स्लोप, इसका स्लोप निकालो। एंड स्लोप को जो मिलेगा वैल्यू किसका रहेगा, k। और स्लोप कैसे फाइंड आउट करोगे, बाय यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्मूला। स्लोप फाइंड आउट, एक्चुअली तुम्हारा भी ये साल प्रैक्टिकल्स नहीं हुआ इसलिए ज्यादा पता नहीं चलेगा तुम्हें, बट स्लोप कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग व्हाट, स्लोप पॉइंट फॉर्मूला। व्हाट इज स्लोप पॉइंट फॉर्मूला, मतलब यहाँ से आपको स्लोप निकालना पड़ेगा बाय यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्मूला। स्लोप कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, स्लोप इज गिवन बाय द फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये स्लोप फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये फॉर्मूला हमें यूज करना पड़ेगा, फिर स्लोप मिलेगा। एंड स्लोप जो मिलेगा तो डायरेक्टली हमें किसका वैल्यू देगा, k का। k इज कॉल्ड एज अ रेट कांस्टेंट, k इज कॉल्ड एज अ रेट कांस्टेंट। तो ये हमारा ही फर्स्ट ग्राफ हुआ, ये हमारा फर्स्ट ग्राफ हुआ। अभी सेकेंड ग्राफ की बात करेंगे। सेकेंड ग्राफ, और आई कैन राइट डाउन हियर slope of straight line is equal to k। यहाँ पे हमें जो स्लोप मिलेगा वो स्लोप किसका वैल्यू देगा, k का। k मतलब रेट कांस्टेंट। एक बार देखो मैंने क्या किया यहाँ पे, a gives you p, a is the reactant, rate is equal to k into a raised to 1, rate is equal to k into a raised to 1। so y is equal to mx, it is the equation of the straight line। ये हमारा y equal to mx का मतलब क्या हो रहा है, इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये हमारे इक्वेशन आ गया, ए एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस, ये स्लोप। एंड स्लोप का जो वैल्यू मिलेगा स्लोप से उसे हमें क्या पता चलेगा, के मतलब रेट कांस्टेंट पता चलेगा। मतलब इसी ग्राफिकली भी हम लोग इक्वेशन का स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अभी दूसरा ग्राफ की बात करेंगे।
consider integrated rate law. Consider integrated rate law. Now, what is integrated rate law? K equals to 2.303 upon T log to the base 10 A0 by 80. K equals to 2.303 upon T log to the base 10 A0 upon 80. करेक्ट. ये हमारा अभी मैं से थोड़ा रीअरेंज करता हूँ इस इक्वेशन को. मैं टी यहाँ पे लेके जाऊंगा तो क्या बनेगा? KT equals to 2.303 log to the base 10 A0 upon 80. अभी मैं यहाँ से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे आएगा K divided by 2.KT divided by 2.303 log to the base 10 A0 by 80. ओके. अभी इसे मैं आराम अरेंज कर लेता हूँ. log to the base 10 A0 by 80 equals to K. देखो इसे मैंने ये जो टर्म है मैंने लेफ्ट साइड में लिखा और इस टर्म को मैंने राइट साइड में लिखा और इक्वेशन कैसा हो रहा है? y is equal to mx. It is also equation of straight line. It is also equation of straight line passing through origin. It is also equation of the straight line passing through origin. तो ये भी हमारा straight line origin से जा रहा है. तो अभी देखो ये हमारा x axis, ये हमारा y axis. तो again I'll plot a graph. x axis पे क्या लेना है? टाइम. y axis पे क्या लेना है? log A0 upon 80 to the base. और y straight line है तो इसकी स्लोप और ये स्लोप जो मिलेगा वो किसका वैल्यू देगा हमें? स्लोप k upon 2.3. स्लोप इज इक्वल टू k upon 2.303. तो यहाँ पे स्लोप gives the value of k upon 2.303. तो हमें स्लोप मालूम है, ये नंबर मालूम है, तो हमें किसका वैल्यू मिलेगा? k का. सो k कैन बी कैलकुलेटेड. k कैन बी कैलकुलेटेड. करेक्ट. हम लोग यहाँ पे k कैलकुलेट कर सकते हैं. स्लोप मालूम है, नंबर ये नंबर मालूम है, ये मालूम है, तो हमें क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? k मतलब रेट कांस्टेंट, मतलब हमारे रिएक्शन का रेट कांस्टेंट कितना है हम ग्राफिकली फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके. और एक ग्राफ है consider integrated rate law for first order reaction. Consider integrated rate law for first order reaction. Okay, consider integrated rate law for first order reaction. तो क्या लिखोगे? k equals to 2.303 upon t
log to the base 10 a0 upon 80. अगेन मैं यहाँ पे क्या करूंगा, t को ये साइड में लेके जाऊंगा तो क्या बनेगा, kt डिवाइड करूंगा 2.303 से, तो क्या बचेगा, log to the base 10 a0 by 80. करेक्ट. kt upon 2.303 equals to log a0 upon a2. तो यहाँ पे आएगा a0 log a upon b. log a upon b क्या लिखोगे, log of a minus log of b. log a upon b can be written as what, log of a minus log of b. Okay, log a upon b can be written as what, log a minus log b. तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, अभी हमें यहाँ पे 80 log 80 ये जो टर्म है मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ, तो माइनस log 80 क्या बनेगा, प्लस. तो यहाँ पे आएगा log 80. ये माइनस log 80 मैंने लेफ्ट साइड में लेके गया तो क्या बना, प्लस log 80. और ये टर्म मैं राइट साइड में लेके यहाँ पे लेके आऊंगा तो क्या बनेगा, माइनस के 2.303 अपॉन टी. ऐसा है, मैंने log 80 को लेफ्ट साइड में लेके गया तो माइनस हैज बिकम प्लस. kt अपॉन 2.303 राइट साइड में लेके आया तो क्या बना, प्लस हैज बिकम माइनस. और यहाँ पे क्या आएगा, log a0. लेकिन इक्वेशन किसके साथ कंपेयर करोगे, y इज इक्वल टू mx प्लस c. y इज इक्वल टू m, ये हमारा c है, इंटरसेप्ट ऑन द y एक्सिस. ये हमारा x है, ये हमारा y. इसका मतलब व्हाट, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन नॉट passing through origin. Equation of the straight line not passing through origin. Because y is equal to mx plus c का मतलब इक्वेशन. तो अभी ग्राफ अगर मैं प्लॉट करूंगा तो ग्राफ ये हमारा x एक्सिस रहेगा. x एक्सिस पे क्या आएगा, देखो यहाँ पे x पे आएगा टाइम, y पे क्या आएगा, log 80. लेकिन यहाँ पे अभी प्रॉब्लम कैसे, तुम बोलोगे अगर ऐसा लाइन ड्रॉ कर दिया, इक्वेशन कैसे, स्ट्रेट लाइन नॉट पासिंग थ्रू. लेकिन ऐसा अगर लाइन ड्रॉ कर दिया मैंने, ऐसा लाइन अगर ड्रॉ कर दे तो स्लोप पॉजिटिव आएगा, लेकिन हमारे यहाँ पे स्लोप नेगेटिव है तो लाइन ऐसा आएगा. इस टाइप के ग्राफ का देखो, अगर हमारा ग्राफ लाइन ऐसा रहेगा तो स्लोप कैसा आता है, पॉजिटिव आता है. मतलब अगर मैंने ऐसा भी ड्रॉ कर दिया तो स्लोप पॉजिटिव आएगा. लेकिन इस टाइप के ग्राफ के लिए स्लोप कैसा आएगा, निगेटिव आएगा. तो यहाँ पे हमें मिलेगा स्लोप इज इक्वल टू माइनस के, ये स्लोप है. तो यहाँ पे मुझे स्लोप मेरे माइनस मिलेगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो मुझे किसका वैल्यू मिलेगा, के का. के मतलब रेट कांस्टेंट. तो इस तरह से हम लोग के का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. के मतलब, और यहाँ पे इंटरसेप्ट आएगा, सी का मतलब क्या था, इंटरसेप्ट ऑन द वाई एक्सिस. तो यहाँ से हमें पता चलेगा हमारा सी मतलब log a0. तो यहाँ से पता चलेगा log a0. यहाँ से पता चलेगा हमारा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना था. मतलब जहाँ पे हमारा लाइन इंटरसेप्ट करेगा, जहाँ पे हमारा लाइन इंटरसेप्ट करेगा वहां पे हमारा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना था वो हमें पता चलेगा. करेक्ट. ये हमारा सेकंड ग्राफ, थर्ड ग्राफ हुआ. तो ये हमारे फर्स्ट ऑर्डर के ग्राफ है, ये हमारे फर्स्ट ऑर्डर के ग्राफ है. करेक्ट. तो ये हमारा मेन इंटीग्रेटेड रेट लॉ है फॉर इक्वेशन इन द सॉल्यूशन. अभी एक नेक्स्ट पार्ट है हमारा,
integrated rate law for gas phase reaction. इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर गैस फेज रिएक्शन, मतलब अगर हमारा रिएक्शन गैस गैसियस स्टेट में रहेगा, मतलब कैसे मालूम है, यहाँ पे ए इज इन द गैसियस स्टेट, और आई कैन से हियर कंसीडर गैस फेज रिएक्शन. कंसीडर गैस फेज रिएक्शन, एक रिएक्शन है जो गैस स्टेट में, उसको कंसीडर कर, तो क्या होगा, ए is a gaseous state, there I B also in the gaseous state, and C also in the gaseous state. मतलब हमें अभी इक्वेशन डिराइव किसके लिए करना है कि अगर हमारा इक्वेशन गैस फेज में रहेगा तो सॉल्यूशन के साथ रहेगा तो हमारे पास इक्वेशन मालूम है, लेकिन अगर हमारा रिएक्शन गैसियस स्टेट में रहेगा, मतलब हमारा रिएक्टेंट एंड हमारे प्रोडक्ट अगर गैसियस स्टेट में रहेंगे, तो हमारा इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन क्या आएगा. तो अभी यहाँ पे देखो, इनिशियली प्रेशर कितना आएगा यहाँ पे, पी आई, क्योंकि हमारे पास कंटेनर में खाली ए था, बी और सी फॉर्म नहीं हुए थे, तो उनका प्रेशर 0 था. हमारे पास इनिशियली खाली ए है, तो ए का प्रेशर कितना रहेगा, पी आई रहेगा, और हमारे पास बी और सी नहीं थे इनिशियली एट टाइम टी इक्वल टू 0. मतलब इनिशियली जब हमने कंटेनर लिया तो हमारे कंटेनर में खाली ए था, हमारे पास बी और सी फॉर्म नहीं हुआ था, तो ए का प्रेशर कितना था, पी आई था, बी और सी फॉर्म नहीं हुए थे तो उनका प्रेशर 0 था. प्रेशर एट टाइम टी, प्रेशर एट टाइम टी मतलब टी टाइम के बाद, मतलब 10 मिनट के 15 मिनट के बाद, तो यहाँ पे प्रेशर कितना था, पी आई माइनस एक्स. एक्स मतलब क्या हुआ था, so I can write there at time t decrease in pressure, or at time t the pressure of reactant decreases by x. मतलब एट टाइम टी, मतलब टी 10 मिनट के बाद 15 मिनट का हमें क्या पता चला कि हमारा प्रेशर कितना डिक्रीज हुआ, एक्स से डिक्रीज हुआ. मतलब यहाँ पे बी का प्रेशर एक्स रहेगा, सी का प्रेशर एक्स रहेगा, और ए का प्रेशर कितने से कम होगा, ए पी आई माइनस एक्स से. अभी यहाँ पे एक्स और यहाँ पे एक्स कैसा, देखो यहाँ पे नंबर 1 है, यहाँ पे नंबर 1 है, और यहाँ पे भी नंबर 1 है, तो ये प्रेशर अगर एक्स रहेगा तो ये भी प्रेशर एक्स रहेगा. तुम बोलोगे यहाँ पे अभी 2x लिखा है, तो यहाँ पे -2x होना चाहिए था, तो नहीं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, और यहाँ पे अगर प्रेशर x फॉर्म हो रहा है तो यहाँ पे प्रेशर 1 मतलब x से क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए, x से क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए. तो देखो हमारा है एट टाइम t, मतलब 10 15 20 मिनट के बाद b का प्रेशर कितना था, x था, c का प्रेशर कितना था, x था, और हमारे a का प्रेशर फिर कितना बचेगा, जो हमारे पास a, बिकॉज a हैज कन्वर्टेड इनटू व्हाट, b इनटू c, तो हमारे पास रिमेनिंग a जो है, हमारे पास रिमेनिंग a है, उसका प्रेशर कितना रहेगा, पी आई माइनस एक्स. कितना रहेगा, पी आई माइनस एक्स. सो आई कैन जस्ट राइट डाउन हियर प्रेशर of reactant A at time t. प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट ए, हमारा रिएक्टेंट ए का प्रेशर टाइम टी पे कितना रहेगा, तो दैट इज इक्वल टू व्हाट, पी ए, एंड पी ए इज इक्वल टू व्हाट, पी आई माइनस एक्स.
प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट ए, मतलब टी टाइम के बाद हमारे रिएक्टेंट का प्रेशर कितना रहेगा, प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट ए एट टाइम टी इज इक्वल टू व्हाट, पी ए, प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू पी आई माइनस एक्स. Similarly, pressure of product B and C at time t equals to how much? So pressure of the B is equal to x and pressure of the C is also equal to x. देखो at t टाइम पे, मतलब at टाइम t हमारे A का प्रेशर कितना रहेगा, पी आई माइनस एक्स रहेगा, हमारे B का प्रेशर कितना रहेगा, x रहेगा, और हमारे C का प्रेशर भी कितना रहेगा, x रहेगा. तो अभी हम कहेंगे टोटल प्रेशर एट टाइम टी, टोटल प्रेशर कितना रहेगा. सो हियर देयरफॉर टोटल प्रेशर एट टाइम टी, टोटल प्रेशर एट टाइम टी इज इक्वल टू व्हाट, P इक्वल्स टू टोटल प्रेशर एट टाइम टी इक्वल्स टू, तो हमारे A का प्रेशर, प्रेशर ऑफ A प्लस प्रेशर ऑफ B प्लस प्रेशर ऑफ C, एंड द टोटल प्रेशर P इक्वल टू प्रेशर ऑफ A कितना था हमारा, पी आई माइनस एक्स, B कितना था x, C कितना था x माइनस एक्स, तो P इक्वल टू पी आई माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसल, तो x मिला. तो टोटल प्रेशर P इक्वल टू क्या मिला, पी आई प्लस एक्स मिला टोटल प्रेशर. अभी इससे हमें x का वैल्यू पता चलेगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू P माइनस पी आई. हमें x का वैल्यू चाहिए था कि यहाँ पे प्रेशर हमने लिखा था at time t the pressure of the reactant decreases by what, x, मतलब हमारे रिएक्टेंट का प्रेशर x से डिक्रीज हुआ था, तो x मतलब कितना लेना है हमें. तो अभी हम यहाँ पे टोटल प्रेशर मिला, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पी आई प्लस एक्स, उससे हमें x का वैल्यू पता चलेगा, x इज इक्वल टू व्हाट, p माइनस पी आई. तो अभी इसमें हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, x का वैल्यू यहाँ पे. Therefore, pressure of A at time t is PA. PA is equal to कितना था, pressure of the reactant, pressure of the A at time t is equal to what, PA. PA is equal to कितना था, PI minus x था, तो PI minus x था. x का वैल्यू कितना मिला था हमें, P minus PI मिला था, तो यहाँ पे आएगा PI, और x का वैल्यू हमें कितना मिला था, P माइनस PI. ब्रैकेट ओपन करो, PI माइनस P प्लस PI, PI PI, तो it becomes what, 2PI minus P. So at time A, time T, pressure of reactant A at time T is PA. PA is equal to PI minus X. तो ये हमारा प्रेशर आ गया. तो हमें अभी प्रेशर का वैल्यू मिला. फिर अभी हमें क्या करना है, प्रॉब्लम सॉल्व करना है. मतलब the concentrations now expressed in terms of pressure, thus A0 is equal to क्या लिखोगे, PI,
और ए टी के जगह क्या लिखोगे, पी ए, पी ए मतलब क्या लिखोगे, 2 pi माइनस पी। मतलब हमारे फॉर्मूला में ए जीरो के जगह क्या लिखना है, पी आई लिखना है, ए टी के जगह क्या लिखना है, पी ए मतलब क्या लिखना है, 2 pi माइनस पी, करेक्ट। सो देयरफॉर के इक्वल्स टू, हमारा इक्वेशन क्या था, 2.303 अपॉन टी log to the base 10 a0 अपॉन 80। यहाँ पे 2.303 t log to the base 10 a0, what is a0, pi, और 80 की जगह क्या लिखना है, pa मतलब क्या लिखना है, 2 pi माइनस p लिखना है, 2 pi माइनस p। तो ये हमारा फॉर्मूला रहेगा अगर हमारा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आर गोइंग टू बी इन द विच स्टेट, गैसियस स्टेट। मतलब अगर हमारा रिएक्टेंट, और ये इक्वेशन कभी यूज करना है कि अगर हमें कॉन्सेंट्रेशन दिया रहेगा तो, सॉल्यूशन दिया रहेगा तो, सॉल्यूशन मतलब कॉन्सेंट्रेशन, और ये कभी यूज करना है फॉर गैस फेज। तो एक बार वापस मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो हमारे पास क्या, उन्होंने क्या बोला था, इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन डिराइव करो फॉर विच फेज, गैस फेज। सो कंसिडर अ गैस फेज रिएक्शन, consider a gas phase reaction. A in the gaseous state gives you what, B plus C. Initially at time t, मतलब हमारे पास इनिशियली ए का प्रेशर पी आई था, बी और सी फॉर्म नहीं हुए थे तो उनका प्रेशर 0 था। प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एट टाइम टी, मतलब आफ्टर 10 मिनट्स, 10 मिनट्स के बाद हमें क्या पता चला, बी का प्रेशर एक्स था, सी का प्रेशर भी एक्स था, तो यहाँ पे प्रेशर कितना कम होगा, पी आई माइनस एक्स कम, कितना कितना होगा, पी आई माइनस एक्स हुआ कम, करेक्ट। ये तो हमारा ये अभी इनिशियल प्रेशर हुआ, और आफ्टर टी टाइम के बाद कितना प्रेशर हुआ, तो टोटल प्रेशर कितना होगा, तो टोटल प्रेशर तो हमें मालूम है एट टाइम टी हमारा ए का प्रेशर पी आई माइनस एक्स था, ये बी का प्रेशर एक्स था, सी का प्रेशर सी था, तो टोटल प्रेशर कितना था। सो टोटल प्रेशर एट टाइम टी इक्वल टू प्रेशर ऑफ ए प्लस प्रेशर ऑफ बी प्लस प्रेशर ऑफ सी। ए का प्रेशर पी आई माइनस एक्स, एक्स एक्स, तो यहाँ पे माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हुआ तो क्या मिला, एक्स। फिर हमें एक्स का वैल्यू मिल गया, यहाँ एक्स का वैल्यू, और फिर हम लोग ने इस इक्वेशन में एक्स का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, क्योंकि हमें प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट ए एट टाइम टी कैलकुलेट करना है, इज इक्वल टू पी ए इज इक्वल टू पी आई माइनस एक्स। एक्स का वैल्यू क्या था, पी माइनस पी आई था, ब्रैकेट ओपन कर दिया तो ये माइनस पी और ये माइनस माइनस प्लस पी आई, 2 pi माइनस पी हो गया। सो पी ए इज इक्वल टू 2 pi माइनस पी। द कॉन्सेंट्रेशन नाउ एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। तो अभी हमें क्या करना है, ए जीरो के जगह क्या लिखना है, पी आई लिखना है, और ए टी के जगह क्या लिखना है, पी ए, पी ए मतलब क्या लिखना है, 2 pi माइनस पी लिखना है, करेक्ट। तो यहाँ पे k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग टू द बेस 10 a0 अपॉन a t, k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग टू द बेस 10 pi अपॉन 2 pi माइनस p। तो ये हमारा इक्वेशन, ये हमारा इक्वेशन। ये इक्वेशन कभी यूज करना है, फॉर गैस फेज रिएक्शन, गैस फेज। अगर हमारा रिएक्टेंट गैसियस स्टेट में रहेगा तो हमें इस इक्वेशन को यूज करना है। इसके ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, बट दैट न्यूमेरिकल विल डू इट इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके दोनों के दोनों, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, दोनों फॉर्मूला के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी कुछ आपको डाउट है, कुछ पूछना चाहते हो? यस,
कुछ पूछना चाहते हो? Okay, so we'll stop it over here and the remaining part we'll do it in the next lecture. आज दीपेश नहीं है क्या लेक्चर में? So Gauri is there, she is messaging. दीपेश, विघ्नेश, बाकी नहीं हुए लोग. Hi, sir. Okay.